बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ट्यूसडे 12 to 2:15 वाली क्लास है हमारी। हाँ जी, हाँ तो क्या प्रेजेंटेशन आप लोगों ने व्हाट्सएप पर ईमेल करी है? अल्लाह, किस नाम से की है ईमेल? किस नाम से? किस नाम से? देख लो, आ जाओ, ओपन कर लो, स्टार्ट कर लो, आ जाओ। हसन अस्करी। आ जाओ भाई। मैंने एक सवाल नहीं किया था किसी से भी। प्रेजेंटेशन इतना आगे बढ़ाएगा। हमारा टॉपिक है था इनके आप कोई सवाल? उनसे कोई सवाल नहीं। लाइक कर रहा हूं। चलो भाई जल्दी करो, हाँ जल्दी जल्दी I am presenting Fatma Ali Jinnah. Fatma Ali Jinnah, known as the 100 Millers, mother of the nation, was born on
31st July 1893 in Kathiawar, Gujarat. She was a dentist and advocate for women's rights. Her early life and education. Fatma Ali Jinnah was the youngest of the 7 siblings, with Muhammad Ali Jinnah being her the closest brother and the guardian after their father's death in 1901. She studied dentistry at the University of Calcutta and becoming one of the India's first female dentists. Role in Pakistan movement. She supported her brother Muhammad Ali Jinnah, mobilized women and advocate for the participation in Pakistan movement. Advocacy for women's rights. Fatma Ali Jinnah championed women's power, education and mobilized their women and the suffrage of their education. And Independence Conference. After the Pakistan's independence in 1947, Fatma continued to advocate for women's rights and suffrage. Legacy. Fatma Jinnah's legacy is profound, remembered as a visionary leader and advocate for visionary leader and social reform. Her determination and courage makes her an enduring symbol for Pakistan's movement. Institutions like Fatma Ali Jinnah University and numerous monuments honor her contributions. Thank you. ये इन्होंने काम को किया था राणा राजस्थान के साथ शादी के बाद उन्होंने इसलिए के बाद activities participated in Pakistan made a major role in relief efforts for the after version of India in 1947. Contribution by women's rights founded the All Pakistan Women's Association APWA in 1949. Promoted women's rights, education and social welfare. Advocate for girls' improvement and public participation in women. First female legislator of Pakistan. My name is Hassan and my topic is Lady Abdullah Harun. Lady Abdullah Harun was one of the prominent female leaders of Pakistan. Mashallah, Subhanallah. She belonged to a well-known Sindhi family and was married to Sir Abdullah Harun, a prominent leader of Pakistan for All India Muslim League. She contributed diversity in the freedom movement. She mobilized women for political rallies and meetings. She encouraged women to get educated and take part in politics. She had a strong vision and was strongly aligned with Fatma Jinnah and Rana Zakir Ali Khan. After independence, she worked on all Pakistan women's association with Rana Zakir Ali Khan and was very committed about female education. Legacy. Lady Abdullah Harun was the founding member of the female wing of All India Muslim League. She firmly believed that women are not only to take care of home but should be educated and take part in politics also.
My name is Alisha. We are representing and she made, she was very well known women. They are very important to Pakistan. And she was very talented, and she was born in 1908. And she was born in a heritage family. Begum Tasadduk Hussain was a multi-faceted individual, a talented writer and a poet, and entrepreneur. She graduated from the University of Punjab, and she actively contributed to the Punjab Professional Women's Academy. She offered refugees to the countless refugees using the Bihar rivers, showcasing her dedication to humanitarian causes. And she played a very important role in Pakistan. वो शायद मुझे मेंटल ट्रॉमा हो रहा है आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया। व्हाट्सएप में करो, ईमेल करो। जाओ बैठ जाओ, जब तक ये प्रेजेंट करनी है आप ईमेल करो। ईमेल एड्रेस है ग्रुप में, देखो मैं दोबारा भेजना है। I know. मैं एक्सपो में थी यार। फ्रेम में देख ले, फ्रेम में ना। ये यहाँ पे आ रहा है, अंदर में नहीं आ रहा। लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक। फ्रेम पे लेफ्ट क्लिक करें। राइट क्लिक करनी है पहले। यहाँ पर है। तो इनबॉक्स नहीं होनी चाहिए। सर्च कर लें इनबॉक्स में। या मैंने ऑर्डर कर दिया है, मेरी 11 दिन जनवरी कैसे चली आप लोग शॉप अभी देखा यहाँ से ओपन करें। इस तरह ऐसे ओपन करें। नीचे जाओ है इसको करने के लिए पुलिस नहीं करनी है। और ये साथ में है नहीं सर मेरे साथ कोई भी नहीं सर ये आगे मैं करूँ कार्ड में
Mr. Rajput के सामने हमारी पार्टी भाई मोबाइल ऑफ करें स्टूडेंट सारे और मोबाइल उल्टा करके दूर करके रखते हैं अपने से। जो मोबाइल यूज कर रहे हैं इनके करीब मोबाइल नजर ना आए। So this presentation explains how military helps the country. Protecting the country. Fought in the first Indo-Pak War 1947-48 over Kashmir. Protected borders and control violence inside the country. Helped refugees and maintain order. In the first war in Pakistan or कश्मीर के दरमियान तो पुलिस फोर्स ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की थी और जो बॉर्डर्स में जो वॉयलेंस वगैरह होता है जिस तरह हमले वगैरह होते हैं तो उसमें भी जो फौज है वो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है पाकिस्तान को बचाने के लिए। Political role reported to each civilian government to control in 1958 President Naguib Khan's martial law helped run the country during crisis. So, those being government civilians हैं हमारे उसमें भी फौज ने हमारा बहुत अहम किरदार अदा किया और जो पाकिस्तान में जितने भी क्राइसिस वगैरह आए हैं उसको भी लाइक हल करने में फौज ने पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मदद की। Other countries will help in building roads and projects, assisted in maintaining law and order, manage natural emergencies like floods and floods. Okay, so इस तरह से roads और projects वगैरह करते हैं जो पाकिस्तान 1947 में बना था आज़ाद हुआ उसमें roads और projects भी फौज ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की और इस तरह से वो जो आते हैं ज़लज़ले वगैरह और सैलाब वगैरह जो आते हैं उसमें फौज ने पाकिस्तान के जो लोग थे जो मुश्किल में थे उनकी उसमें बहुत ज़्यादा मदद अब जैसे कि पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए फौज जो है हमारे आज बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं फौज को बहुत बुरा भला दे रहे हैं लेकिन अभी जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और फौज ने आप सब जानते हैं कि कितना अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान को बचाने के लिए तो फौज जो है वो अभी तक पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद कर रही है 1947 से लेकर अभी तक। थैंक यू। सही से और किस्मतों की क्लैपिंग सुभान अल्लाह ने बोला सर ये सब तो होना चाहिए। मुसलमान का यही तरीका है, अलग तरीका नहीं मुसलमान है। अच्छा और कौन रह गया था? ईमेल कर दी, आ जाओ जल्दी आ जाओ फिर टाइम का किस नाम से? स्लो है तो एक लगाओ बिल्कुल भी नहीं गई फाइल। यहाँ व्हाट्सएप पे खोल दो, मैं खोल सकता हूँ, मुझे भेजिए। हाँ व्हाट्सएप खोलते हुए करते हमारा तो मोबाइल ऐसा भाई ले लो चेक कर लो कुछ निकाला है हमें भी देखा तो भाई आप एक अपना ऐसा होना चाहिए कोई इसको टेंशन ना हो सही है
आ जाओ भाई। हाँ। ओ भाई फर्स्ट आप लगा किसका फायदा मेरा इस नाम से भेजिए ये नहीं ये वाली। हाँ हाँ वो भी करेंगे। हाँ सर ये भी करेंगे। सर डिबेट के टाइम खत्म हो रहा है सर ने ना मैं वैसे खोल के छोड़ा हुआ याद है कि मैं पानी मेरा 20 का काम है आ जाओ नेक्स्ट कौन करेगा इधर आ जाओ जो नेक्स्ट करेगा तो भाई ग्रुप में ले रहे हैं लेकिन इसमें गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और यहाँ लोगों को भी राइट नहीं होता कि अपने वोट से अपना लीडर को चुना जाए मिलिट्री गवर्नमेंट शुरू कैसे होती है आर्मी इलेक्टेड करती है लीडर तो ये किस वजह से शुरू होती है कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है फिर आर्मी कंट्री से लॉज और बहुत सारी चीजें बराबर होती हैं और उसमें मिलिट्री गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है मिलिट्री गवर्नमेंट होती है ना वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता है मिलिट्री जो होती है वही रूल करती है जारी करती है वहाँ के रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी तरफ से कोई भी रूल्स तोड़ नहीं सकता है अनलिमिटेड फ्रीडम होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह नहीं होता है आप ऐसे जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं आप कुछ भी ऐसे मिलिट्री लीडर्स मेक डिसीजन विदाउट आस्किंग और पब्लिक के ओपिनियंस वगैरह ना मैटर नहीं करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कोई भी इशू होता है तो उसका फिर सॉल्यूशन निकाला जाता है क्राइसिस का करप्शन के चांसेस भी होते हैं और कम करता है डिसएडवांटेजेस हैं पब्लिक की वॉइस की इम्पोर्टेंस नहीं होती है ह्यूमन राइट और इस रिलेटेड गवर्नमेंट सिस्टम से ना लोगों में फेयर और इंजस्टिस military government's experience gave Alexander the country to 1958 to 1950. He took power to the first military coup in 1958 and introduced new policies for military freedom and political activity. General Ziaul in 1977 in 1988 का revolution था
The remote transistor it was and with full control that is for the period of 1999 to 106 to power by the remote transistor in Himachali from the democracy but has a literary presence for Iran. तो कंक्लूजन से ये है कि जो मिलिट्री है वो आगे पूरे कंट्री को रूल करेगी, डेमोक्रेसी कंट्री को रूल करेगी, जो मिलिट्री है वो कंट्री को रूल करेगी. न्यूज़ नहीं पढ़ी. प्रेजेंटेशन का जो मकसद है ना वो ये है कि आप थोड़ा तैयारी करके आए. देखकर पढ़ने से प्रेजेंटेशन नहीं होती. आप मतलब कुछ मटेरियल आपके जहन में होना चाहिए जो आप अपने अल्फाजों में बयां करें, समझाएं, सामने वाले की तरफ तवज्जो करें, सबको मुतवज्जे करें अपनी तरफ, और उसको आप अपना कोई एक आध पॉइंट तो सही से समझाएं ना. जैसे देखो अभी स्टूडेंट्स यहाँ बैठेंगे कि मैं इनको खड़ा करूँगा, पूछूंगा ना कि ये प्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या बताया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ये नहीं दे पाए क्योंकि वो समझ ही नहीं सके कि आप उनको समझा क्या रहे हैं. एक उनकी अपनी भी गलती है, वो जरा बहुत से सुन भी नहीं रहे होते और सिस्टम को समझ भी नहीं रहे जो आप बताना चाह रहे हैं. हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये आपके फाइनल से भी रिलेटेड है सारा. समझ रहे? अब ये लड़की देखो बैठेगी, तुम बताओ इन्होंने ये जो किस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन दी है. आपने इसको खड़ा करें. हाँ, बताओ क्या टॉपिक लेंगे, कौन सी गवर्नमेंट का था. आम नॉर्मल जनरल गवर्नमेंट सिस्टम, मिलिट्री गवर्नमेंट सिस्टम. उसमें इन्होंने क्या बताई, कोई कहे अच्छी बात आपको लगी, कोई एक पॉइंट बता देता. क्या अच्छी बात कौन सी लगी? हाँ, बहुत सारी अच्छी बातें दी है. कोई एक पॉइंट की बात बताओ. बताओ ना, जितना सोचोगे. और पीछे करो स्लाइड. देखो ये कितनी सारी चीजें हमने बताई यहाँ पर. करप्शन कम होती है. अच्छा ये बताया ना आपने पॉइंट, ये बता पॉइंट बताए नहीं. आप गौर करें इसमें अच्छा पॉइंट का कोई है नहीं. इन्होंने जितनी प्रेजेंटेशन दी है ना सारी, उसके अंदर इन्होंने जितने पॉइंट बताए ना, आप उन सबको पढ़े लिखा हुआ जो है यहाँ पर. तुम्हें कोई एक भी पॉइंट अच्छा है? कहाँ पे लिखा हुआ है? The main goal played by the military is to bring stability, peace, or fight corruption, but often it results in strict rule. लास्ट पार्ट में क्या समझाया कि करप्शन अपनी मर्जी से होगी. मैं इसी पे तो असलम इन्होंने जो प्रेजेंट किया वो बता के क्या क्या चली गई. कोई एक भी स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर ही नहीं रहा कि ये क्या बता रही हो, ये आपने क्या लिखा हुआ है सारा. ये सब वैलिड पॉइंट्स हैं. आप पढ़े तो सही यार, आप लोग मतलब पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं. मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझ रहा हूँ, लेकिन आप खुद कुछ और जाहिर कर रहे हैं. आप पॉइंट्स को पढ़ ही नहीं रहे सही से. देखिए इसमें लिखा है ऑफन इट रिजल्ट इन स्ट्रिक्ट रूल. वो इतने सख्त होते हैं कि आप करप्शन फौजी की पकड़ ही नहीं सकते. मिलिट्री
गवर्नमेंट में आपका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, आप किसी तरह अमल दखल कर ही नहीं सकते उसमें। अभी इन्होंने आगे बताया, खुद इन पॉइंट्स के अंदर बताया है, यहाँ पर देखें, रेडियो मेड डिसीजन विदाउट आस्किंग द पब्लिक। सर पुलिस भी नहीं कर सकती ना? कोई भी नहीं अमल दखल, पुलिस तो उनके पैर की जूती है भाई। पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने हाथ डाला है पांच दफा, जबकि उनकी गवर्नमेंट है ही नहीं, तब उन्होंने जो है ना ऐसी की तैसी मचा के दिखा दी। ये तो जब वो पावर में हो तब तो आप छू भी नहीं सकते, नैब भी नहीं कहती। कुछ कोई भी नहीं, इनके सब आगे पीछे है, आपके मेरे लिए है। कहने का मकसद है कि ये इतने अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए, लेकिन कुछ गड़बड़ भी इनमें करी है बहुत ज्यादा। ये समझाना था ना इन्होंने, जो आखिर में लास्ट में लड़की आई है उसने ये अदवार बताए पीरियड्स, ये इनके जो जनरल अयूब खान का, इसी तरह जनरल जियाउल हक का, लेकिन वो भी इन्होंने देखकर पढ़ाया था। लेकिन आप लोग कम से कम समझते थे, इनसे पॉइंट तो पूछते भाई, आप कोई सवाल तो करें इसमें। परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह से नवाज शरीफ को हटा के दिया था, अच्छे पॉइंट्स तो इसमें नहीं थे। खैर ये सिस्टम ही सारा क्या था गड़बड़, लेकिन पॉइंट्स को जरा देखना चाहिए और समझना चाहिए जो आपने किए जी। इसका मतलब था कि करप्शन से बचा जाता है, लेकिन आवाम उसमें कोई भी अपना इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अंदर करप्शन हो रही है, होने दो, ऐसे से नो टू करप्शन लिखा होता है, लेकिन वही करप्शन हो रही है। हाँ, क्योंकि उनका अमल दखल ही नहीं है ना। मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर आप ऑब्जेक्शन रेज कर ही नहीं सकते है ना, ये इशू है ना असल मसला। अभी तो देखो, हालांकि ये नॉर्मल गवर्नमेंट है जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसके अंदर इंसाफ हासिल करना कितना आजाद है, मुश्किल काम है। तो ये तो फिर इसको प्यूरिफिकेशन सिस्टम तो कहा नहीं जा सकता, तो बड़ा मतलब इन्होंने उसको बड़ा पेचीदा कर दिया है, अदल इंसाफ को हासिल करना। कोई अमीर जाता है तो बस वो निकल जाए, गरीब जाता है तो बढ़ा जाए, है ना। तो ये सिस्टम मेरा खराब है हमारे, इसको सही करने की जरूरत है। पहले अल्लाह पाक बेहतर फरमाए। अब हमारे पास है पाकिस्तान रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान के जी जी हाँ, मैंने तो तखस्सुस किया था 2012 में, जो हमारा इक्विवेलेंट टू पीएचडी होता है, और पीएचडी में तो आमतौर पे नॉर्मली तकरीबन 100 थीसिस तैयार किए जाते हैं। हमने 350 तैयार किए थे, जो कंप्लीट किए थे। ये पाकिस्तान की जो हमारी एचईसी है ना, वो पहले ये करती थी कि तखस्सुस किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ हो ना मुफ्ती बंदा, तो उसको इक्विवेलेंसी देती थी पीएचडी की, यानी इक्वल टू पीएचडी होता है ये। लेकिन फिर ये मुशर्रफ ने आके सारा सिस्टम गड़बड़ किया, खराब किया उसने सिस्टम, तो उसने ये हमारी जो इक्विवेलेंसी थी ना उसको कैंसिल करा दिया था, और उससे बड़ा बहरहाल नुकसान हुआ हमें, जो कि गलत किया, उन्होंने ज्यादती की थी ये। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरीन मुनसिफ हैं। खैर ये हुआ था, तो तखस्सुस तो मैंने 2012 में किया था, और 2011 से ही तकरीबन हम साथ साथ पढ़ाना ही शुरू कर दिया था हमने। चले भाई, अब कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना? यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर से। चले भाई, नजर आ रहा है? नहीं, चले भाई आप शुरू कर दें। कहाँ जा रहे हो? जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ना, यानी कि पाकिस्तान से बाहर,
foreign relations are characterized by close ties with China, Turkey and Saudi Arabia. चाइना, तुर्की और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात वो बहरहाल फिर भी स्टेबल हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव उसके अंदर होता रहता है, जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात है उसके अंदर। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के पास जो अंदरूनी खुफिया एजेंसीज हैं वो अल्लाह के हुक्म से जो है बड़ी ताकतवर हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी क्लेवर माइंडनेस की बुनियाद पर अल्लाह ने जो उनको दिए उसकी बुनियाद पर ही स्टेबल रखते हैं अपने ताल्लुकात को। अमेरिका से ज़्यादा खुला जो है वो फड्डा भी नहीं करते हैं और सही से उसको जो है ना दबा के भी रखते हैं अपने तरीके से। पाकिस्तान ऑल्सो हैज टेंस रिलेशंस विद इंडिया पर्टिकुलरली ड्यू टू दी कश्मीर डिस्प्यूट, जो इब्तदा से स्टार्ट से एक डिस्प्यूट कश्मीर का बरतानवी हुकूमत ने पैदा रखा था शुरू से ही, तो वो एक मसला है पाकिस्तान का इंडिया के साथ, जिसकी बुनियाद पर जो है आपस में टेंस रहता है और कशीदगी हर वक्त मौजूद रहती है। आपस के ताल्लुकात जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और हमवार नहीं हो पाते और कुछ जो है आपस में मज़ाहिब का भी डिफरेंस है और भी दीगर डिफरेंसेस हैं, जिसकी बुनियाद पर ये डिफ़िकल्ट रिलेशंस विद अफ़गानिस्तान एंड ईरान, जो कुछ हमारे ताल्लुकात देखने में आते हैं अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ, वो भी थोड़े से अलग थलग से हैं। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत दफ़ा ख़राब किए गए हैं रियासत की तरफ से, लेकिन उलमा की तरफ से चूँकि अंदरूनी ताल्लुकात हैं और ये जो जिगरा सिस्टम होता है, क्या कहते हैं, जरगा सिस्टम, और इसी तरह वो बैठक सिस्टम होता है, जो पाकिस्तान के ऐसे ममनुआ इलाके या इलाका गैर उनको कहा जाता है, खुसूसन जो हमारे बलूचिस्तान में बहुत से हैं और ये पंजाब में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जिधर वडेरे होते हैं और सरदार नुमा लोग होते हैं जो इलाके के बड़े होते हैं, उनको बड़ा समझा जाता है। तमाम डिसीजंस जितने भी फैसले हैं वो उन्हीं के जिरगे के अंदर जाकर पेश कर दिए जाते हैं और वहीं पे उनका जो फैसला होता है उसी को फाइनलाइज समझा जाता है। यानी कि यूँ समझ लें उनका सरकार भी वही होती है, अदालत भी वो होती है, जज भी वो होता है, सज़ा भी वही दे रहा होता है, माफ़ भी वही कर रहा होता है, उनका सदर वज़ीर आज़म सब वही होते हैं जो जिरगा सिस्टम का बड़ा होता है। तो वो पूरे जिरगे के मशवरे से और बैठक के साथ जो है तमाम चीज़ों को फैसला कर रहा होता है। तो ऐसे जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है और ये असल सिस्टम जो है वो देखा जाए तो इस्लामिक सिस्टम से कुछ करीब करीब है और अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसीलिए लोग अपने फैसलों के लिए जो है पहाड़ियों पर जाया करते थे। अफगानिस्तान में तो खुसूसन बल्कि पाकिस्तान में भी उमूमन आम तौर पे, क्योंकि उससे ये होता था कि उनको इंसाफ मिल जाता था। आपकी इन अदालतों में तो इंसाफ एक तो बड़ा मिलता नहीं है, फिर अगर गलती से इंसाफ कर भी दें वो बड़ा मुश्किल से होता है और उसको इंसाफ कहा नहीं जाता है, तब तक इंसाफ बूढ़ा हो चुका होता है, इतना बूढ़ा हो जाता है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो अगर जो इस्लाम शरीयत ने असल इंसाफ बतलाया है तो 3 चीज़ें बताई हैं। वो क्या है कि अदल इंसाफ विद इक्वलिटी, बराबरी के साथ मुकम्मल तौर पे सही इंसाफ हासिल हो, पहली शर्त। दूसरा, एट द सेम टाइम, जिस वक्त वो मामला हुआ है मुअम्मा हुआ है उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपको नकद जिसको कहते हैं ना, उधार अगले चौक से नकद बड़े शौक से, वो वाला मामला हो कि भाई अभी कोई डिस्प्यूट हुआ, अभी कोई मसला खड़ा हुआ, अभी कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसका फैसला अभी के अभी आज के आज हो जाए। ये ना हो कि तारीख पे तारीख, फिर तारीख फिर तारीख, वो सिस्टम क्या है, इस्लाम के खिलाफ है। और तीसरा, बिल्कुल साफ शफाफ सुथरा बाय इस्लामिक शरिया लॉज, जो कवानीन उसके अंदर चले इंसाफ देने में वो शरीयत के कुरान हदीस के एन मुताबिक हो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनाए हुए अंग्रेज का कानून है उसके मुताबिक ना हो। अगर ये 3 चीजें
हैं उस इंसाफ के अंदर, तो बस आप समझ लें कि सिस्टम बेहतर है। अब सिस्टम किसी का भी हो, डेमोक्रेसी हो या इस्लामिक शरिया कवानीन नाफिज हैं या खिलाफत है या जो भी है, लेकिन ये सिस्टम असल है इस्लामिक सिस्टम। इस्लाम का असल ये है तरीका, अमीर है गरीब है दोनों की बराबरी है, उसके अंदर किसी को कोई माफी नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो यही है, अगर इस तरह का सिस्टम हो तो ठीक है। अभी अफगानिस्तान में है चूंकि, तो इस वजह से हमारे ताल्लुकात उस बुनियाद पर बनाकर जो है ना, और दूसरा तालिबान को लेकर आगे बात आ भी रही है, उस पॉइंट को लेकर भी इन रिलेशंस को आपस में आलमी तौर पे खराब करने की भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान उसको बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो है चालाकी के साथ और होशियारी के साथ स्टैंड ले लेता है और उसको हल भी कर लेता है। चले भाई नेक्स्ट। अटेंडेंस अभी लेते हैं। पाकिस्तान के चीन के साथ क्या है, देरीना ताल्लुकात है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। जो हमारी अस्करी क़यादत है और उसकी जो अस्करी असलहा है, इसके अंदर हमारी पार्टनरशिप है चाइना के साथ। हमारी तरफ से हमें जो वो फायदा देता है, हमारी ताकत को कुव्वत को और ज्यादा मजबूत करने का उसने स्टैंड लिया हुआ है कि पाकिस्तान को अभी तक शुरू से है, अभी भी यही चल रहा है ना। हाँ ना, तो चाइना ने जिम्मेदारी ली हुई है कि भाई हम आपको कम कीमत में अच्छे से अच्छी चीज बना के देंगे, और दुनिया ने उसका एक डेमो देख भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा दिन पहले। और पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ मुआहिदा किया हुआ है वो इन चीजों के अंदर किया हुआ है कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको जो है ना हम आपकी तशहीर भी करेंगे, यानी कि जिसको आप कहते हैं ना कि मशहूर करना दुनिया के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स को, चाइना को हम बिजनेस देंगे, ये हमारी आपके साथ सपोर्ट है। तो चाइना को वाकई बिजनेस दिया है पाकिस्तान ने, अपने पाकिस्तान के अंदर भी दिया है, और अब तो उनके जो आपने खुद देख लिया जहाज़ों को इस्तेमाल करके जो पूरी दुनिया में उन्होंने इनके शेयर्स बिकवा दिए हैं और एक ज़बरदस्त मंडी उनको दे दी, ठीक है ना। तो वो सारी दुनिया जो है अब वो चाइना की तरफ जा रही है। वो जो एक जहन था ना कि चले तो शाम तक वरना चांद तक और ये वाला, तो वो सब अब खत्म हो गया है। वो पता चल गया कि भाई ये वो बात नहीं है जो हम समझते हैं। वो मटेरियल देखकर हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अब एक माइक है तो उधर माइक वाला ही मटेरियल यूज हुआ हुआ है, लेकिन एक जो अब हथियार वाला जहाज है तो वो उसका मटेरियल अलग ही है, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट से बनी हुई चीज है। वो अब चाइना का नाम लेके आप ये ना समझे कि बस फुलझड़ी है। तो बहरहाल उस चीज में पाकिस्तान ने पूरा करेक्टर अदा किया है और उनको जो है पूरी दुनिया में बिजनेस दिया है, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर भी उनको जबरदस्त बिजनेस दिया है। और जोहरी ताकत पाकिस्तान की, उसके अंदर चाइना का फुल सपोर्ट है। हर अभी यानी कि चाइना ने पाकिस्तान को एक ऐसा बम दिया है बनाकर, जो वो एक अरसे से कोशिश कर रहा था, वो बन चुका है। वो बम इतना खतरनाक चीज है कि वो यानी कि जिस जगह आप फेंक देंगे ना उस बम को, फाड़ा आपने, वो उससे आगे की कुछ और ही चीज बनाई है उन्होंने। तो वो क्या करेगा कि वो इतनी हीट पैदा करेगा कि उस हीट से ही जो है ना चीजें खुद ही जल जाएंगी, ऐसी खतरनाक उसकी गर्मी है। 1000 पता नहीं, मैं पढ़ रहा था, मुझे भी सही याद नहीं आ रहा, क्यूबिक सेंसस होता है क्या होता है, उससे भी ज्यादा उसकी जो है ना गर्माहट होगी जो जला देगी पता नहीं कितने किलोमीटर दूर तक चीजों को। तो वो न्यूक्लियर बम तो फट फट के वो फटता चला जाता है ना, वो उस तरह जो है ना परीक्षा उड़ाता है, ये इस तरह पिघला देगा ये चीज। अभी ऐसा बम दे दिया उसने पाकिस्तान को जो बहुत खतरे की निशानी है और अमेरिका को बहुत ज्यादा चुप भी रहे वो। चले भाई नेक्स्ट, तुर्की या टर्की कह लो।
हाँ, आयरन ब्रदरहुड, हाँ, ये आहीनी भाईचारगी होती है। आहीनी भाईचारगी के मीनिंग्स क्या है कि भाई हर शोबे के अंदर मैं आपकी मदद करूंगा, ये होती है आहीनी भाईचारगी। सर जैसा कि वॉर के लिए उन्होंने वो मैरी, हाँ, तो वो उन्होंने कहा भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जब भी कोई मसला होगा तो ये जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ हर मसले पे कहते हैं कि यार हम कोई भी बात होगी मैं आपके साथ हूं, मैं कहीं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो पाकिस्तान का टर्की के साथ यही मुआहदा है कि अगर टर्की पे कोई मसले मसाइल होंगे, किसी भी किस्म की ज़रूरत होगी, मदद चाहिए होगी, उनको बिजनेस करना है, जो भी XYZ जो भी, तो वो सब कुछ जो है ना उसकी मदद करेगा पाकिस्तान, ऐसे ही वो हमारी मदद करेगा। ये आपस का है आयरन ब्रदरहुड कि वो हर मामले के अंदर, हर डिपार्टमेंट शोबे में हमारे मददगार होंगे, हम उनके मददगार होंगे। इसीलिए वो एक दूसरे के मुल्क में आना जाना भी इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और ये खुद भी अक्सर विजिट्स आपस में इसी बुनियादों पर करते रहते हैं ताकि वो ताल्लुकात हमवार रहें। चलें नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया। Pakistan maintains strong ties with Saudi Arabia, offers Muslim shared features and cultural हाँ जी, सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा वर्ल्ड वाइड आप देखें रिलेशन है तो वो किस चीज को लेकर है? आमतौर पे रूहानियत को। आप देखते हैं मजहबी एतबार से, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और हमारे दीन के जो अहम जुज़वियात हैं, हिस्से हैं, पिलर्स हैं, उनकी वजह से भी हम सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और हर साल जो है कई हमारे जो है मुसलमान वहाँ पे हज और उम्रे के लिए जाते रहते हैं, लाखों की तादाद में विजिट्स होते रहते हैं। पूरी दुनिया से जितने भी मुसलमान हैं वो सऊदी अरब से इस एक बुनियाद पर जो है वो कनेक्ट रहते हैं कि अल्लाह ने वहाँ पर जो है अपने घर को रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को रखा, तो उसको विजिट करते हैं, उम्रे पे जाते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं। एक तो ये है। दूसरी बुनियाद जो खुसूसन पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया को हासिल है वो रूहानियत का ताल्लुक है और इल्म दीन का ताल्लुक है, जिसकी बुनियाद पर सऊदी अरेबिया अरब लोग जो हैं ये कोई मामूली लोग नहीं होते, ये बड़े खुददार होते हैं और वफादार भी होते हैं। अरब लोग जो असली अरब होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इनके अंदर जो है अल्लाह ने बड़ी शुजाअत और बहादुरी रखी होती है और ये अपने अंदाज को, सकाफत को कभी तर्क नहीं करते, छोड़ते कभी नहीं है। इसीलिए आप देखें कि अब तक उनके अंदर वो चीज़ें चली आ रही हैं और मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल असली अरब अब बहुत कम मौजूद रह गए, बहुत कम है। जो अब ऊपर हैं ये यहूदियों की नस्लों में से हैं वो अरब, और ये बस एक लिबादा ओढ़े में, लेकिन हकीकत में, और इसीलिए नबी अलैहि सलाम ने असली अरबों को बुरा भला कहने से मना फरमाया कि उनको बुरा नहीं कहो, क्योंकि वो नबी अलैहि सलाम भी वही नस्ल है अरबी, ठीक है। तो आप अलैहि सलाम ने तो सही फरमाया, लेकिन असली अरबियों के मुतालिक। तो बहरहाल अरबों के साथ हमारा दीनी ताल्लुक है और वो अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देते, लेकिन आपके पाकिस्तान को ये खुसूसियत और फजीलत हासिल है कि पाकिस्तान के दीनी तबके को, खुसूसन उलमा को अपने से आगे बिठाते हैं और कहते हैं ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे पेशवा हैं, ये हमारे इमाम हैं। हत्ता के हरम का इमाम जो दुनिया की सबसे बड़ी अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इमाम काबा, वो तक आपके पाकिस्तान के कई उलमा ऐसे हैं जिनको वो अपने मुसल्ले पे खड़ा कर चुके हैं। और कुछ पुराने वक्तों के हमारे ऐसे अच्छे दीनदार सियासतदान भी थे जिसको वहाँ के इमाम काबा ने मुसल्ले पे भी खड़ा किया कि आप नमाज पढ़ा दो। ये पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान को ये खुसूसियत हासिल है कि अरब जैसे लोग वो पाकिस्तान के इल्म दीन रखने वाले, और अभी भी आप तकी उस्मानी साहब को देखें और भी दीगर हजरात, तो इनको वो अपने आगे खड़ा कर देते हैं कि ये हमारे पेशवा हैं, ये हमारे बड़े, क्योंकि वो जानते हैं। आप उनकी मसाजिद में जाएं, विजिट करें, 10 मस्जिदों में जाएं, मालूम करेंगे इमाम मस्जिद वो कहाँ से डिग्री होल्डर है, उसका सर्टिफिकेट कहाँ का है,
तो 10 में से 9 आपको जो सर्टिफिकेट वाले मिलेंगे वो पाकिस्तान के होंगे। तो वो अपने अरबी को मदीना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए उसको भी प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक छोटे से मदरसे से भी पढ़ के अगर डिग्री हासिल करके आए ना, उन्हीं का अरबी या पाकिस्तानी भी, तो उसको प्रेफर करते हैं कि यार ये है अच्छा, ये जबरदस्त बंदा है। अभी भी ऐसे ही है। जब मैं भी गया तो मैंने सर्वे किया, ढूंढा तो वाकई यही निकली बात, और ये हकीकत इस सच थी। अरबों को भी वो नहीं रखते इमाम मस्जिद, बल्कि इनको पाकिस्तानियों को रख देते हैं क्या, और अपने भी अरबी को उसको वो तरजीह देते हैं जो पाकिस्तान से डिग्री हासिल करके। तो इल्म दीन की डिग्री पाकिस्तान की वैलिड है, पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो बहरहाल ये फजीलत हमें हासिल है। यूनाइटेड स्टेट्स, कोल्ड वॉर जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान अक्सर लगी रहती है। और वो किस तरीके से कि इन्होंने उसको दहशतगर्दी का नाम देते हैं यूनाइटेड स्टेट वाले, और पाकिस्तान को उसमें आमतौर पे खुसूसन मुलव्विस करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एशिया का, मैंने आपको बताया था कि की होल्डर है या गेटवे है, गेट पास है, गोया सेंटर ऑफ द एशिया है। तो ये हर मामले में पाकिस्तान को घसीट देते हैं, चाहे वो मामला अफगानिस्तान का हो, ईरान का हो, इधर उधर का, इंडिया तक का भी हो, तो वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है कि जी आप, ये कोल्ड वॉर है। जो अमेरिका इस तरीके से हमारे साथ लड़ता है, और हमारे भी लोग माशाल्लाह इसमें बड़े चीते, जो खुफिया हैं, वो बड़े जबरदस्त अंदाज में इसको हैंडल करना जानते हैं और उलझा के रखते हैं। और ऐसे मकामात पे जहां पर पाकिस्तान का अपना भी मफाद होता है, इन्होंने अपना भी फायदा निकालना होता है, तो उनके साथ खड़े होकर बिल्कुल ऑपरेशंस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, दिखाते भी हैं सारे स्टेट्स। और जहां इनका कोई फायदा नहीं होता तो वहां पर उनको फिर गोली दे देते हैं। चले भाई, नेक्स्ट कौन है? आप पढ़ लें भाई। हाँ हाँ चलें, आपने तो पढ़ लिया ना अभी। हाँ चलें। कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान का भारत के साथ मामला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी बुनियाद है उसकी, कश्मीर डिस्प्यूट, जिसकी वजह से पाकिस्तान के और भारत के आपस के ताल्लुकात, फिर भी पाकिस्तान ने अक्सर कोशिश की है, लेकिन भारत इसमें कभी भी कोशिश नहीं करता हुआ नजर आया और हमेशा नाकाम नजर आया, और हमेशा आग लगाता हुआ जो हमें नजर आया ना, उनके अपने भी लोगों को, सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं है, जो भारतीय लोग भी हैं उनका भी कहना यही होता है, और वो भी यही जाहिर करते हैं तशवीश, सिवाय चंद गिनती के लोगों के, ठीक है ना, जिनको वो सामने लेकर आते हैं हमेशा मीडिया पर। जो असल उनकी भी अवाम है, अक्सरियत, वो खुद भी यही कहती है कि पाकिस्तान के हमेशा जो है भारत के साथ भी गलत मामला नहीं रहे, अच्छे रहे। इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत स्टेप्स उठाए, लेकिन दूसरी जानिब से जाहिर है एक हाथ से आप ताली कैसे बजाएंगे, तो मुश्किल काम है ना। तो कश्मीर को लेकर जो है एक डिस्प्यूट वो दोनों मुल्कों के दरमियान रहा है। चले भाई, अफगानिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, आपस के ताल्लुकात हैं, ये बहुत अच्छे रहे शुरू से, सरहदें जुड़ी हुई हैं। अफगानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान से बहुत फायदा उठाया है। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से आगे निकल रहा है अपनी इकोनॉमी को लेकर भी, और उनके रुपये की कदर भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन तालिबान का जो एक सिलसिला है ना, उसको लेकर इन खुसूसन अमेरिका ने जो है ना पाकिस्तान के ताल्लुकात को हमेशा खराब करने की कोशिश की है अफगानिस्तान के साथ। और तालिबान की हकीकत क्या है मैं आपको बता दूं कि जो असल तालिबान है ना, वो तो वाकई बड़ी पावर रखते हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी ताकत दी है।
ये जो तालिबान दूसरे बनाए गए, जिसको यूएनए की खातून ने खुद जो मेंबर है उसने भी डिस्क्लोज किया, और वो बिल्कुल ऑफिशियली वीडियो मौजूद है जिसमें उसने खुद ये बयानिया दिया कि अमेरिका ही वो मुल्क था जिसने तालिबान के खिलाफ गलत तालिबान को तैयार किया और जिनसे जुल्म करवाए गए, और हमारे इशारों पर ही वो चलते थे, हमारे ही लोग थे, तो हमने खुद पैदा किए वो जो गलत 2 नंबर तालिबान थे, और उनसे हमने खुद ऐसे काम करवाए क्योंकि तालिबान असल में हमारी पावर को बहुत खतरा लाहिक हो गए थे, हमारी पावर को तोड़ देते ये, और उनकी पावर को, अपनी पावर को बचाने के लिए, उनकी पावर को तोड़ने के लिए हमने उन्हीं में से तालिबान को उन्हीं जैसे तैयार करे, और इस तरीके से हम तालिबान के ऊपर काबू पाया हमने, और हम अपनी ताकत को बचा लिया हमने। लेकिन जो हमसे एक गलती हुई ना, वो ये हुई कि फिर ये हमारे हाथ से भी निकल गए। जो हमने भी तालिबान तैयार किए थे ना, वो भी ऐसी ताकत थे, क्योंकि खतरनाक ताकत को तोड़ने के लिए उनको बनाया गया था। तो एक वक्त आए वो हमारे हाथ से भी निकल गए, तो हमने उनको फिर छोड़ ही दिया कि चलो ये एक मामला रहेगा, हम मुसलमानों को टारगेट करते रहा करेंगे, वक्तन फवक्तन तंग करते रहा करेंगे पाकिस्तान को, खुसूसन मुस्लिम कंट्रीज को। तो अब जो हमें जो दिखाए गए ना तालिबान, वो दूसरे थे जो इन्होंने तैयार किए थे। जो असली तालिबान थे वो चूंकि पक्के मुसलमान थे, ईमान वाले, तो वो अंग्रेज की ताकत के लिए खुद नुकसान का जरिया बन गए थे। तब इन्होंने ये जो है ना डमी तालिबान तैयार किए थे, और वो फिर उल्टा जो है उनके हाथ से ही निकले, और ये बहरहाल उस चीज को लेकर एक आपस के ताल्लुकात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खराब करने का जरिया बने कि वो हमारे रिलेशन स्टेबल ना रह सके। चले, और फिर हमारे उलमा ने लेकिन इसमें भरपूर कोशिश की है और उन ताल्लुकात को बहुत हद तक जो है ना बेहतर रखा हुआ है। चले भाई, ईरान Pakistan's relationship with Iran is complex, influenced by regional, geographical, geopolitical dynamics, and the potential for cooperation on certain issues, while also facing challenges due to shared border issues. ईरान के साथ जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात पेचीदा रहे, बाद मरतबा इलाकाई, सरहदी और दीगर मुख्तलिफ मामलात के अंदर अमल दखल करने की वजह से भी। हालांकि ईरान को जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सा एक बड़ा तबका है जो ये भी मानता है, और उनका अकीदा है, वो कहते भी हैं कि ये गोया अमेरिका का एजेंट है, क्योंकि हरकतों से ऐसा महसूस होता है, पकड़ में आता है ना बंदा। और इसकी आप बहुत सी एग्जांपल जो है वो डिफरेंट वीडियोस में देखते भी रहते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। एक जो आपस में ये पेचीदगी का जरिया है वो ये भी है कि मजहब का ताल्लुक। तो पाकिस्तान के अंदर जो रिहायशी लोग हैं आमतौर पे ये मुसलमान है, और मुख्तलिफ इनके जो है वो नजरियात है ना, जो इनको कुरान और हदीस ही देता है। तो उन नजरियात, उन अकायद के खिलाफ जो तबका है वो ईरान का रहने वाला है। तो इस वजह से भी आपस की एक पेचीदगी मौजूद है दोनों के जो है अवाम के दरमियान। चले भाई, अदर इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स। Other important relationships with Russia. Pakistan has been strengthening its relation with Russia, particularly in the areas of defense and energy. The EU is Pakistan's second most important trading partner, with the trade primarily focused on textile, machinery and transport. पाकिस्तान जो है ना ये रूस के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे हुए इसने भी, और दिफाई ताल्लुकात के अंदर उनके साथ इसका बहुत अच्छा रिलेशन है। और इसी तरीके से तवानाई के जितने शोबे हैं उसके अंदर जियो पोलिटिकल लैंडस्केप, हमने बात की थी जियो स्ट्रेटेजी ऑफ पाकिस्तान की, तो वहां पर मैंने आपको जरा सा टच किया था। जियो पोलिटिकल लैंडस्केप मैंने बताया था पाकिस्तान दुनिया के ऐसे नक्शे पे, ऐसे एरिया पर बना हुआ है कि इसको छोड़कर जो है वो एशिया के ममालिक में आमदोरफ्त और दीगर काम जो है ये बड़ा मुश्किल है। की पॉइंट है, गेटवे है। तो उस एतबार से भी देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो बड़ी ताकतों के साथ ज्वाइंट हुआ है, जुड़ा हुआ है, जिसमें चाइना भी है,
अमेरिका कुछ फासले पर मौजूद है, जिससे ये अपनी फॉरेन जितनी भी इसकी खारजा पॉलिसीज हैं उनको बनाने में इसको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसका ये फायदा भी होता है, आपका घर भी अगर अच्छी लोकेशन पे बना होता है तो आपको उससे बड़ा फायदा हासिल होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पाकिस्तान सीक्स टू फोस्टर इकोनॉमिक ऑपरेशन विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स, जिससे पाकिस्तान को तिजारती मुआहिदों में सरमायाकारी करने के मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, आसानी में हो जाती है, बेनिफिट हासिल होते हैं। चले भाई नेक्स्ट स्लाइड लास्ट है, किसका नंबर है? ताहा के साथ वाली। In summary, Pakistan foreign relations are characterized by a mix of global the ties with the country and free and जल्दी आ जाओ, हम डिबेट स्टार्ट कर रहे हैं। आप हिस्टोरिकल टाइज क्या है? जो वो पेचीदगियां जो माजी में हुई ना, हर मुल्क हर इंसान भी जो है अपने साथ जो माजी में गलतियां की होती है उनको क्या करता है, सही करता है, ताकि आइंदा उससे वो गलतियां ना हो और उसका नुकसान ना हो। ऐसे ही कंट्री बेस कंट्री वाइज भी ये मामलात होते हैं, जो पाकिस्तान ने भी 75 सालों में बहुत कुछ सीखा है। जब पाकिस्तान सेपरेशन होकर बना भी है तब भी उसने भारत से, इंडिया से बरसगीर में बहुत कुछ सीखकर और फिर ये सारे मामलात हुए। पाकिस्तान बनने के बाद भी जो कश्मीर का हिस्सा अलग हुआ उससे पाकिस्तान ने बहुत सी चीजें सीखी। इसी तरह फिर बांग्लादेश का जो 1971 का मामला हुआ उससे भी पाकिस्तान ने काफी चीजें सीखी हैं और अपने आप को आगे जो है वो और मजीद ठीक करने की कोशिश की है। यही चीज कहलाती है हिस्टोरिकल टाइज, जो हमें मुल्की सतह पे जो है माजी की हुई गलतियों से जो हम अपने अंदर उन गलतियों को सही करते हैं और उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीजें, जिनकी बुनियादों पर फिर कंट्री वाइज जो है आलमी एतबार से हर मुल्क के साथ जो है पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा बनाया है, चाहे वो किसी भी एतबार से। ठीक है, चले भाई। अब आ जाए डिबेट की तरफ, डिबेट करें फिर फाइनल करें, इसको खत्म करें। अच्छा, जो भी हमारे पेंडिंग मेंबर्स थे ना, स्पेशली उनके लिए और आमतौर पे सबके लिए, स्पेशली तो वो कि जिन्होंने मतलब कोई भी एक क्विज नहीं दिया, क्विज अटेम्प्ट नहीं करा, मिस कर दिया, या उन्होंने कोई असाइनमेंट मिस कर दिया या असाइनमेंट सबमिट करा लेट किया, उनको भी हमने नंबर नहीं दिए। सीधी और सच्ची बात मैं अनाउंस कर रहा हूं। तीसरा, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी नहीं सिरे से, या प्रेजेंटेशन दी तो वो न्यूज़ की तरह दी, जैसे पढ़कर वहां से पढ़कर दी है, इधर से पढ़कर दी, तो वो भी गलत तरीका है। थोड़ा सा प्रेजेंट करने में 1-8 मिनट की तैयारी होनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से ना फिल बदी उसको बताएं, प्रेजेंट करें। ये तो फाइनल में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हम सीपी जब फाइनल करेंगे ना तो उसमें अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह खुद ही ऑफिशियली तौर पे। अभी तो हमें खुद भी वो हम उसको फाइनल नहीं कर सके ना, क्योंकि ये एक आध चीज रह गई थी। तो अब स्पेशली वो स्टूडेंट जो मिस कर गए या जो मैंने आपको चीजें बताई, लेट सबमिशन करी या प्रेजेंटेशन सही नहीं दी, उनके नंबर ठीक सही नहीं आए। और आमतौर पे वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने सब चीजें चलो सही दी हैं, टाइम पे प्रॉपर उन्होंने असाइनमेंट दे दिया, प्रेजेंटेशन भी अच्छी दी, क्विज भी दे दिया है, लेकिन फिर भी जाहिर है उनके कुछ नंबर तो किसी गलती की वजह से माइनस हो गए ना। तो हम उन तमाम नंबर्स को जो है ना कंपनसेट करेंगे इस डिबेट से। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो अब ऐसा है कि जो हमारा ग्रुप 1 है ना, वो इस साइड पे बैठेगा सारा,
जो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं, सबको अपने ग्रुप पता होंगे किसका कौन सा ग्रुप है। ग्रुप नंबर 2 वाले सारे मेंबर्स हमारे पार्टिसिपेंट उधर बैठेंगे, उधर रो में। मतलब प्रेजेंटेशन वाले ग्रुप थे, डिबेट का डिबेट के ग्रुप हमने बनाए थे ग्रुप। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले, 3 वीक्स। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप जो है, किसी में नहीं है तो आप अल्लाह ना वास्ते बैठ जाओ कहीं भी। अभी थोड़ी ग्रुप बनाएंगे आप। तो ये ग्रुप 1 हो गया, जो होता है खिलाफत मूवमेंट, खलीफा। खिलाफत शरिया। और ये ग्रुप 2 था हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप जहां तुम्हारा दिल कर रहा है वहां बैठ जाओ। जाओ, जिस टॉपिक की तुम्हारी सही तैयारी है वहां बैठ जाओ। अच्छा, अब ये कर लें कि एक पेपर यहां से स्टार्ट करें। ये ग्रुप 1 है ना, इन सब के नाम आ जाओ उस एक पेपर पे। यहां से स्टार्ट कर लें ये, बल्कि इसको ही ले लें। इस पे प्रेजेंट लगाते जाएं जो जो बैठे हुए हैं ना। पहले ये वाले सब कर लें ताकि उनको हम अलग करें। फिर यहाँ वाले स्टूडेंट एक पेपर निकाल लें और सब अपने नाम लिखें। एक पेपर निकाल लें, उस पे ये सब अपने नाम लिखें। ग्रुप 2 है ना सारे। बस आपको जो अब टॉपिक सही लग रहा है उस ग्रुप में हो जाए फौरन। टॉपिक 1 ग्रुप का ये ग्रुप 2 है। अभी डिबेट शुरू कर रहे हैं, हम बताते हैं क्या करना है। जल्दी से ये काम कर लें, पेपर पे नाम लिख लें तेजी से। नाम होगा ना, लिख दो, नीचे लिख दो। नहीं है तो यहाँ पे नंबर डालो, लिख दो। बस ये इसी रो में चलेगी, वहां नहीं जाएगी। सिर्फ अपना अपना लगा दें बस। मुझे ना तुम्हारा भी नाम लिया। अपने पॉइंट्स निकाल लें स्टूडेंट, जिन्होंने अगर पहले पॉइंट नहीं नोट करें अभी निकाल लें जल्दी से। अपने टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट हम अभी आपको टाइम दे रहे हैं 10-10 मिनट का। पहले ग्रुप 1 को 10 मिनट देंगे, वो अपने तमाम पॉइंट्स बता दें, फिर ग्रुप 2 को हम मौका देंगे। ठीक है, फिर आपने देखना है अगर ये कोई गलत पॉइंट बताते हैं आप नोट करेंगे, ये सुनेंगे पहले। इसी तरह वो जब अपने पॉइंट्स बताएंगे तो आप सुनेंगे। जो कोई पॉइंट गलत बता रहे तो उसको नोट करना है अपने पास। जल्दी करो, तेजी से नाम लिखो। कहाँ पेपर कहाँ पहुंचा ये इधर की अटेंडेंस का? जल्दी जल्दी तेजी से करो। हमने 3 हफ्ते दिए हैं, 3 हफ्ते गुजर गए इस चीज को। किसी चीज में ऐसे थोड़ी होता है। आप उनको बता देना। ला एक पेज दे दे, पेन दे दे मुझे। एक पेपर पेन दे दें, बस एक ही चाहिए। हाँ, पेपर पेन दे दो बस। चलो भाई, ग्रुप 1 इनका टॉपिक है खिलाफत शरिया।
ग्रुप 1 वाले स्टार्ट कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल। खामोश हो जाए सब। हाँ चले भाई, करें करें स्टार्ट करें। शरिया बेसिकली हमारे सामने लॉज हैं जिसमें डिबेट चलती है कि अभी जो हमारी करंटली डेमोक्रेसी है वो सेकुलर और सेकुलरिज्म और इस्लामिक लॉ दोनों मिक्स हुए थे। तो और जो डिबेट है हमारी 1947 से लेके 1970 समथिंग तक क्या कहते हैं वो डिबेट चलती रही है कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक स्टेट बना था तो वी शुड फॉलो शरिया लॉ जो हमारे गनी के हैं, सही है। एंड ये पूरा डिबेट इस तरह से चल रहा है एंड उसमें उन्होंने ज़्यादा अपने जैसे हुकूक लॉज लगाए थे। मैं रिपीट करता हूँ, हाँ सही है। हुकूक लॉज लगाए थे सर मेरे पास सर हमारे जो भी मतलब रूल्स और लॉज होते हैं वो हम लाइक थोड़ा जोर से बोलेंगे तो इनको आवाज जाएगी ना, नोट करेंगे फिर पॉइंट। सर जैसे हमारे कोई भी लॉज या कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं वो कुरान शरीफ से लिए जाते हैं ताकि हम उस पर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें जाते हैं, ठीक है ना। हमारे किसी भी लाइक क्या कहते हैं वेलफेयर से रिलेटेड, कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है ना। और हमारा कोई भी इलेक्टेड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इससे नहीं होता कि हमारे पास किसी के पास वेल्थ हो या डेमोक्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो। हमारे यहाँ जैसे अगर शरीयत के मुताबिक कोई भी खलीफा चूज करा जाता है ना तो वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की हमदर्दी से चूज करा जाता है। ये नहीं कि इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं या ये बंदा जो है वो ये कर सकता है, पैसा वाला है, ये नहीं होता। लोगों की हमदर्दी और उनकी अच्छाई को देख के उस पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करा जाता है। ग्रुप पार्टिसिपेंट्स भी सुने, जो पॉइंट बता दिया गया वो कोई रिपीट करेगा उसको मार्क्स नहीं दूंगा मैं, ये याद रखें। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया इस्लामिक स्टेट है 1947 से 19 तकरीबन 70 तक जो है यही रहा है कि भाई ये मुल्क जो है वो ज़ाहिर है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, तो इस्लामिक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे। इन्होंने ये पॉइंट बताया कि सोर्सेस ऑफ शरिया ये इम्प्लीमेंट होंगे कोई भी कानून बनाने के लिए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको बना रहे हैं बिल्कुल फ्रेश या उसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं या कुछ भी है तो वो शरीयत के एन मुताबिक होगी। अब जैसे आप कह रहे हैं कि जी 18 साल से कम वाली बच्ची अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती है, ये गैर कानूनी है, तो ये काला कानून है, ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, नबियों के तालीमात के खिलाफ है, पाकिस्तान के शरिया कानून के भी खिलाफ है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के भी खिलाफ है। एक ये इंसानी जिस्मानी जरूरत है, जैसे बालिग हो गई अब उसकी जरूरत है, उसको बचपन से भूख लग रही है, आप बोल दो खाना ही नहीं खिलाना है तो मर जाएंगे इंसान। तो ये क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान और हदीस, शरिया हदीस सबकी रोशनी में गलत है। तो सोर्सेज हमारे पास शरीयत की हैं, ठीक है भाई। और क्या पॉइंट्स है, 10 मिनट है आप लोग के पास, जल्दी जल्दी बताओ साहब। हाँ चलो, हमारी जो खिलाफत शरिया हो क्या बता दिए मीनिंग क्या होते हैं। बेसिकली हमारे जो मुल्क के जो कानून है वो किसके बेस पे चलेंगे, इस्लाम की बेस पे चलेंगे। गवर्नमेंट इस्लाम की बेस पे होगी, लॉज बाय इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक बेस पे होगी। सोशल और इक्वालिटी की जस्टिस वो इस्लाम की बेस पे लिए जाएंगे। इकोनॉमिक सिस्टम वो भी पूरा इस्लाम के बेस पे लिया जाएगा। और जस्ट लास्ट द सोशल वैल्यूज जो कि एक मुल्क को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब इस्लाम पे बेस पे किया जाएगा। सही। अगर सबसे पहले हम चूज करते हैं गवर्नमेंट को, हमारी जो गवर्नमेंट आईडी को लोग चूज नहीं उसको मतलब करते हैं। इस्लाम में ये रूल दिया है कि लोग जो होते हैं वो हर कोई केपेबल नहीं है मतलब वोट देने के लिए, क्योंकि मेरी नॉलेज और आपकी नॉलेज और स्टूडेंट की नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। तो उनको इतना लीड दिया जाता है कि ये सब मिलकर जो कि मेन उनके लोग होते हैं जैसे सर है हमारे, वही उनको वोट देते हैं। मतलब ये इस्लाम का रूल है और वही से चूज करके गवर्नमेंट बन जाती है।
सेकंड हो गया हमारा इस्लामिक लीडरशिप। कि वो मतलब जो भी मतलब वो होते हैं क्या कहते हैं वो जोर से थोड़ा। जैसे जो जिस तरह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से भी कोई भी उनके पास प्रॉब्लम्स होती थी और जिस तरह से भी हम आयतें पढ़ते हैं या उनके तर्जुमे जिस तरह से भी लिखे जाते हैं या जिस तरह से भी कोई भी खलीफा हमें डिफाइन करता है या हम लोग कोई भी खुतबा या कुछ भी सुनते हैं उसके मुताबिक जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो सब उसी तरीके से जैसे पहले इम्प्लीमेंट होते हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है या किसी ने भी कोई भी दखलदारी नहीं करी या जिस तरह से आज मॉडर्न टाइम के साथ साथ लोग अपने अपने नए नए लॉज बना लेते हैं वो जब भी वैसे थे और आज भी वैसे ही हैं और उनको उन्हीं पे ही इम्प्लीमेंट करके यूज कराया सही। शरीयत होती है वो 4 चीजों से बनती है, कुरान शरीफ, अहादीस और जो आपके करंट इजमा। इजमा और कियास उनसे। और चौथी चीज मुझे याद नहीं, कियास है। हाँ कियास। इन चीजों से बनती है शरीयत की। इन लोगों के डिसीजन अगर कुरान शरीफ के करंट सिचुएशन के बारे में कि सिचुएशन क्या चल रही है तो अगर उसमें नहीं समझ आया तो उसमें देखो, फिर उसमें नहीं समझ आया तो उसमें देखो, फिर एक पूरा लॉ फाइंड। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। कुरान, हदीस, इजमा और कियास। ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर से डिसीजन लेंगे। हाँ जी चलो। हाँ ऐसा नहीं है, आप जब किसी को सिलेक्ट करते हैं ना तो आप ये क्वालिटीज है ना वो हाँ ये बात भी बोली मैंने कहा कंप्लीट करने देना, कंप्लीट करने देना। क्वालिटीज वाइज नहीं, ये तो आपके साथ ही है, आपकी फेवर में ही आगे उसको और क्लियरिटी दे रहे हैं और ज्यादा। हाँ सही है, और क्लियर कर रहे हैं। क्वालिटीज होनी चाहिए, नेक हो, सौले हो, उम्र रसीदा हो, इल्म में ज्यादा हो, ये सारे पॉइंट। ठीक है, अभी पहले हम इनके सबके पॉइंट्स ले रहे हैं ना, 10 मिनट हमने दिए इनको, उसके बाद आप लोग लेंगे, फिर हम देखेंगे मेजर पॉइंट वो कौन से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कौन से जो है ना एंटी हैं, फिर उस पर हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा थोड़े से कुछ पॉइंट तो हम लेना पहले। चले, स्टार्ट करने का तरीका है ना, जस्टिस है। हाँ कोई भी चाहे वो कैलिफ हो या फिर कोई भी गवर्नर हो वो कुरान उससे अदल से ऊपर नहीं। हाँ बिल्कुल, उससे बाहर नहीं जा सकता। आप कंप्लीट करें था। हाँ हाँ वही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, हाँ जी यहाँ से बताएं कोई पॉइंट। सुने भाई, खामोश। खिलाफत शरिया से आप में से कोई बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई, खिलाफत शरिया। सवाब मिलेगा ना। कोई वैलिड पॉइंट निकालो, अभी टाइम है तुम्हारे पास। हाँ जी, अबे कब निकालोगे भाई। हाँ हाँ जी, थर्ड लॉ वाली जल्दी। हाँ, माइनॉरिटी मेजोरिटी, ठीक है, ये भी
डेमोक्रेसी के बाद आज हम की हालत देख रहे हैं। हाँ। कोई मुस्लिम कंट्री बनना की संदर्भ में नहीं आता। सही। कोई भी नहीं, इवन सऊदी अरेबिया में लगा। चलें। हाँ, और कोई पॉइंट? 1 मिनट आप नोट रखे, अभी आपकी बारी आ रही है। हाँ जी। हाँ, माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों हो गए ना। और इनके साथ वाली, हाँ जी, उनके साथ वाले कहाँ, क्या नाम है इनका? कोई पॉइंट निकाला है? सर ये यहाँ जो तीन कैरेक्टर्स हैं इसके सबसे फर्स्ट जस्टिस है, जस्टिस सर होता है, दूसरा कॉलेज ऑफ विजडम, ठीक है, क्या होगा? हाँ, विजडम भी है इसमें, ठीक है। और सर हमारी जो मुल्क की डेमोक्रेसी वो इसलिए डिस्टर्ब और स्टेबल नहीं है बिकॉज़ शरिया के लॉज जो हैं वो फॉलो नहीं। चले ठीक है भाई, यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए। लास्ट पॉइंट ये बता रही है बस। हाँ हाँ, जो कैलिफ है वो सोशल बंदा होता है, पॉलिटिकली नहीं कि बस वो एक दफ्तर में बैठ गया और वहीं से सब हैंडल हो रहा है। ठीक है भाई, सही है भाई, इनका टाइम पूरा हो गया। अब आ जाते हैं ये ग्रुप 2 की तरफ। चले जी, आप लोग स्टार्ट करें। इसमें जो आम होती है वही गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है और वो उन्हीं के लिए जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कोई भी अवध नहीं होता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर चुना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट चुना हो। डेमोक्रेसी में ये है कि ऐसे बड़ी चीज को आपको सम्मान हो, आपको इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिलाई जाती, तो थोड़ा हो रहा है आप दोनों उनके अंदर एक सही। हर चीज के लिए जो मुल्क के अंदर हो रहा है उस चीज के लिए अगर मुल्क लोग के हिसाब से नहीं चल रहा है, जैसे लोग लीडर है उस हिसाब से नहीं चल रहा है, तो लोग उनको हटाने का फिर ऐलान करते हैं। लीडर एक्शन तो ये हमारे पास एक बैक है कि हम लोग डेमोक्रेसी को प्रमोट कर डेमोक्रेसी। सही, यानी कि ये कहने का मकसद है कि आप जब उस निज़ाम से खुश नहीं है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आवाम के पास हक के खुद इरादियत जिसको कहा जाता है वो है। चले भाई, हक के खुद इरादियत। आगे। हाँ जी। और हाँ यानी गैर मुस्लिमों के साथ, ये कह रही हैं आप। ये नोट कर लें, पॉइंट बड़ा खतरनाक है, उन्होंने बोला है, अभी नोट कर लें। हाँ सही सही। हाँ जी। कि कौन से सिस्टम में? अच्छा, मतलब आप उसके एंटी खुद अपने पैर में खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं भाई। हाँ, ये तो अच्छा प्लस पॉइंट है भाई। ये तो आपने अपने गोल में ही मारा है। हाँ, कमेटी शूरा बनी थी जो स्टार्टिंग में हमारे खुलाफा कैलिफ जो सेलेक्ट हुए।
भले वो प्राइम मिनिस्टर कितना करे उसको हटा सकते हैं, हटा सकता है। जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब ये जो आया था 18 साल से कम वाला, तो ये इस्लामिक जो हमारा एक इदारा है, मुझे नाम पूरा जहन में नहीं आ रहा, इस्लामिक काउंसिल, हाँ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है वो, तो उन्होंने फिर इसको रिमूव करवाया कि ये कानून जो है बिल्कुल कुरान हदीस के खिलाफ है, तो वो बहरहाल इस सिस्टम में है। हाँ हाँ जी, आपका क्या था जो पॉइंट पे बोल रहे थे? 1 मिनट। हाँ अच्छा, यानी कि उनके हक में बता रहे थे आप। अच्छा अच्छा, किन बेसिस पे बोल रही हैं? सही, तो करो, बताओ क्या था, याद है? बताओ। अच्छा मैं एक्सप्लेन करूं, क्या थी उनकी बात, बताओ मुझे, याद दिलाओ। मदद किसकी नहीं कर रहा? अच्छा गजा की, हाँ हाँ उधर भी स्ट्रेंथ दिखाते हैं वो। हाँ ये है खिलाफत में। ये तो बस सपोर्ट आधा उनकी तरफ है आधा हमारी तरफ। नहीं, असल में वो पॉइंट अच्छा इन्होंने फिर पूछा था कि इसको जो है ना डिफाइन होना चाहिए कि ये खिलाफत में होता है ना, कि जैसे आप बड़े बड़े आपने जो फाइटर्स मुसलमानों के गुजरे उनके नाम इसीलिए तो मशहूर हुए कि वो एक आवाज पर भी उठकर जाकर, चाहे मीलों का सफर होता था, वहां पर पहुंच के भी जिहाद करते थे। ऐसे ही अपनी ताकत को लेके बैठे नहीं रहते थे। ये खलीफा की जिम्मेदारी होती है कि उसने पूरी कायनात का खलीफा होता है, वो पूरी दुनिया का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात। हाँ जी, और माइनॉरिटीज को भी राइट्स अगर डेमोक्रेसी में सबके राइट्स देखे जाते तो अभी की हाल ऐसी क्यों नहीं देखे जाते? हाँ अगर हमारे मुल्क में अभी डेमोक्रेसी है क्यों नहीं देखे जाते? सुन ले जवाब भाई। पहली बात, यहाँ पे तो हिंदू हमारे मैं अभी ना हिंदूज की बात कर रही हूँ, हमें क्रिश्चियन अच्छा, अगर एक ये पॉइंट की बात भी है ना कि माइनॉरिटी तो वो है जो तादाद में कम है। हाँ राइट्स की बात कर रहे हैं। शोर नहीं, उसमें आवाज है भाई। पहले जवाब भी सुनना है ना, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आंसर भी सुने। देखिए सर, हाँ सर मेरी बात नहीं नहीं, मैं इधर आके इसीलिए तो खड़ा हुआ हूँ ताकि आप ये ना बोल सके मुझे शक हो गया था। नहीं, मैं खड़ा इसलिए हुआ हूँ, खड़ा मैं इसलिए हुआ बैलेंस हो जाए ना, बैलेंस करने के लिए खड़ा हूँ। हाँ सही और गलत की बात है, खिलाफत ठीक है या रिप्रेजेंटेटिव गलत है? नहीं, अभी हम पहले सिस्टम के अंदर है ना, सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो अभी जो लास्ट पॉइंट रेज हुआ है, सुन लो, ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा है, देखो मैं तो न्यूट्रल बंदा हूं ना, मैं अभी ना इनकी तरफ हूँ, मैं ना इनकी तरफ हूँ ना इनकी तरफ हूँ। तो पॉइंट की ये बात हमने करी है, क्या बात है? हाँ
जो बॉर्डर्स बन गए हैं या एक खलीफा उनका नाम है इनका कहना ये है कि देखो हम सही गलत का नहीं कह रहे, ना हम खिलाफत को गलत कह रहे, लेकिन आज जो डिबेट है उसके मैंने पूरी बात सुनी है ना। और अच्छा आगे बोलो, आगे इन्हीं की बात तो बता रहा हूँ, इनकी बात ही बता रहा था मैं। ये यही कह रही है कि हम मतलब सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, ना खिलाफत को गलत कह रहे हैं, लेकिन हमने अपना सिस्टम डिबेट आज है तो हमने रिप्रेजेंट करना है। अब जो पॉइंट पहले बात हो रही थी माइनॉरिटी मेजॉरिटी की ना, तो उस पे इन्होंने कहा है कि हम माइनॉरिटी की भी जाहिर है उसको भी हम हेल्प करते हैं, हम उनको कोई डिग्रेड नहीं कर देते। अब एक टैक्स होता है जिजिया, जो हर नॉन मुस्लिम को देना होता है एज अ प्रोटेक्शन मनी, जो देगा वो प्रोटेक्ट करता है। रियासत मदीना में रियासत थी, जब एक कबीला था नॉन मुस्लिम, वो था, उन्हें जिजिया टैक्स दिया। बैठ जाओ, में थे, वो सिट डाउन कर क्या कर रहे हैं? खामोश हो जाओ, वहां का उनका पॉइंट सुनो। हाँ बिल्कुल खामोश। हाँ भाई एक एक बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे। हाँ 1 मिनट पहले इनको इनके सुन ले। हाँ देखो ऐसे क्या तो आप बोले, आप बोले एक एक करके बोलो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ जब से हमें आवाज नहीं आ रही आप लोग, ठीक है? तो आप लोग शोर कर रहे हो ना। बस सही है। अच्छा आप लोग कह रहे हो कि खलीफा होना चाहिए, एक खलीफा का, ठीक है? एक ही प्रेसिडेंट यहाँ से अपॉइंट होगा, हम अपने आप से बता रहे हैं, और वहाँ से आप कह रहे हो एक खलीफा अपॉइंट करो। पुराने वक्तों में इट वाज पॉसिबल क्योंकि कोई सेक्स सिस्टम नहीं था, वहाँ आपको डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे क्या सही क्या गलत है। उनके कंपेनियंस को आप लोग फॉलो कर रहे थे, व्हिच वाज परफेक्टली फाइन। कंप्लीट कर रहे हैं पहले। लेकिन अब देखो हमारे पास तो ठीक है, सबसे पहले सेक्स सिस्टम हो गया। कंप्लीट सुन ले पहले, 1 मिनट। आप देखो सबसे पहले दो चीज हो गई, एक शिया हो गया पार्ट, ठीक है, एंड देन एक सुन्नी हो गया। अब सुन्नी में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। 1 मिनट आपको करना चाहिए शिया की, ठीक है, एंड शिया में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं एंड सुन्नी में भी। अब आप मुझे बताओ कि एक सुन्नी दूसरे सुन्नी से डिफरेंट है, आप कितने खलीफा पॉइंट करोगे उस चीज को करने में? एंड सेकंड आई एम नॉट कंप्लीटिंग, ठीक है? आप इजमा कंडक्ट करते हो, ठीक है, आपने इजमा कंडक्ट किया। अगर 4 वेरिएशंस फॉर एग्जांपल सुन्नी की हैं, 4 इजमा कंडक्ट किए, कोई भी किसी की बात से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। सर आप खुद बताएं। हाँ करेगा तो फिर आप बात किसकी मानोगे? इसी हिसाब से इन मॉडर्न एरा हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट इसलिए करना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा इंसान पहले सुन ले अभी कंप्लीट करने दे, पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटीज नहीं है, मेरी फ्रेंड भी, ठीक है? हम सऊदीया जाते हैं, हम हज परफॉर्म करते हैं, हम उम्रा परफॉर्म करते हैं, वहाँ क्या खलीफा है? एक सेकंड, ठीक है, बाहर सुन्नी भी जाता है, बाहर शिया भी जाता है, हर कोई अपनी नमाज पढ़ता है, हर कोई अपनी प्रैक्टिस करता है, ठीक है? वहाँ भी क्या डेमोक्रेसी, हर किसी की मर्जी है, आपको जैसे नमाज पढ़नी है पढ़ो, आपको रोजा रखते रखो, कोई आपको मना नहीं करेगा। जैसे वजू करना है करो, आपको चप्पल पहन के जाना है शहर में, आपकी चॉइस है, नहीं पहन के जाना आपकी चॉइस है। सो बेसिकली पुराने वक्तों की बात अपनी जगह, आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम हर जगह अगर खिलाफत का रूल चल रहा होता सऊदीया में, तो हर मुस्लिम उम्रा या हज परफॉर्म ही नहीं कर सकता होता। अगर हर खलीफा अलग होता हर स्टेट को। अच्छा दूसरी बात अभी इनका
टाइम 1 आध मिनट रह गया है। आप लोगों ने अपना वोट करना है, हमने बता रहे हैं आप लोग वोट करो। या 15 मिनट है भी, रुक जाओ। आप लोग हमें काउंटर करना, हम सुनेंगे। अभी आपको इनके बाद टाइम दूंगा ना। हाँ कंप्लीट करो। चलो अब थोड़ा 2-3 मिनट इनको देते हैं फिर। अच्छा भाई बस मैं अभी समझा देता हूँ। देखो हमारा एक लीडर आता है सर, उसका रूलर बन के आता है कि डेमोक्रेसी में जो बहुत अच्छी है, पढ़ा लिखा है सर, उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी होगी। ठीक है, तो अगर अमेरिका के अंदर अभी डोनाल्ड ट्रम्प में कितने लोग नाखुश हैं उससे, मेजॉरिटी नाखुश भी है ना। सुनो पहले ठीक है ना सर, ये छोटे छोटे ना डॉट्स नहीं डालते, थंबनेल वाले ये वो डाल लेते कि हर जगह ना वो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे थे। अपनी समाज अपनी पूरे देश की सारे लॉ की बात होती है, वो मेरा है लीडर तक कहां अपनी जगह नहीं करने दे, वो निजाम है ना, सिस्टम है। अगर वो उम्रा करने जा रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं कह रहा कि भाई आप किस तरह से नमाज पढ़ रहे हो, जहां तो आप हमारे पास ही रहे ना शरीयत के मुताबिक, तो आपको वहां पे कोई जज कर रहा है इस चीज को। आपने बोला शिया सुन्नी के एक मिनट हमें आवाज नहीं आई। जाते हैं, हिंदी का होता है, शियों का होता है, इस पे जब डिबेट हो रही है ना, अब सुनो मेरी जो आपने बताया था उसमें मुख्तलिफ हो रहा है। आपने कहा था खिलाफत शरिया में से जो चीज आपको डेमोक्रेसी में पॉइंट ढूंढ के लानी है, जो खिलाफत शरिया के उसको करीब करीब कर दे, जैसे कि आपने माले का निगम सर, आपने कुछ बैंक वाली मिसाल दी थी सर। मैं तो क्या नहीं, चले अब आपको मैं मौका देता हूँ इनके बाद ना, आंसर हो गया ना इनका, जल्दी जल्दी दे भाई। ये सुनो, खामोश हो जाओ साहब। चले 4 खलीफा चूज किए जाते हैं, सही है। उनका क्या कहते हैं, सुन्नियों का अलग होता है, शियाओं का अलग होता है, इवन आप आने को भी सबका चूज किया जाता है, तब जाके शरीयत बनती है। क्या होता है खिलाफत शरीयत सबकी सुनी जाती है और फिर उनके स्कॉलर से चूज किया जाता है। शरीयत में आपकी क्या होता है, मतलब डेमोक्रेसी में कि लोगों की लेके जाती है। जब रूरल एरियाज और यहाँ के लोगों को चूज करे जाओगे तो वो हमसे ज्यादा शऊर है नहीं है शऊर, तो हमें किसको चूज किया जाए, किसको कंसल्टेशन की जाती है स्कॉलर से, और फिर वहां से वो उठ कर आते हैं। अब बात हुई कि आपके कोने के राइट्स नहीं होते, कि सुन्नियों का अलग होता है और वो है ना लाइक रूलर टाइप पॉलिटिक्स कंप्लीट होने दो। एक मिनट, इन्होंने ये बात बोली तो हम लोग आप बोलो। एक उसने मुझे बोला, इसने बोला इमाम आ जाते हैं, क्योंकि पहले के दौर में नबी की बात सुनी जाती थी, इसके अब के दौर में हमने वो अब आजकल के दौर और हमने क्यों बनाए जाते हैं कि मतलब कोई भी वो मुफ्ती इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एग्जैक्टली हम इसलिए बात करते हैं, मुफ्ती इसलिए बनाया जाता है कि वो अपने इस्लाम हम एक लॉ ला सके, डेमोक्रेसी की भी बात कर सके, और डेमोक्रेसी का ये रूल होता ही नहीं। चलो थोड़ा सर मेरे पास इसका जवाब है, लीडर एक नहीं होता सर। इनके पास आंसर है, लीडर एक नहीं होता। हाँ चले बताए, खामोश हो। वही देखिए हमारे यहाँ पे जो डिबेट चली कि लीडर जो है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। हाँ ये ठीक है, लीडर एक ही होना चाहिए, लेकिन हम इसको इस तरीके से सही कर सकते हैं, और ये है कि लीडर के साथ साथ हमें जो है ट्रस्टेड इस्लामिक स्कॉलर्स का एक ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि एडवाइजर होते हैं शुरा, सही है, शुरा इनको कहा जाता है, और उनको चाहिए कि वो लीडर को जो है एडवाइस दें, और लीडर को चाहिए कि वो उनको
सुने, क्योंकि अगर वो उनको सुनेंगे तो लीडर जो है अपनी कंट्री भी ठीक चलाएगा। और दूसरा ये है कि आपको चाहिए कि इस्लामिक रूल को सेट करें कि कौन कंट्री को रन कर सकता है। तो मतलब ये कि लीडर आप ऐसा लेके आए जो कि ऑनेस्ट हो, रिलीजियस हो और जिसको इस्लाम के बारे में पता हो, ठीक है, उसके पास सारी क्वालिटीज हो, वो इस कंट्री को रन कर सके, ठीक है। अभी तो ये खिलाफत की तो बात कर रही है ना, रुके तो। उसके बाद ये है कि लीडर जो है, लीडर जो भी काम करेगा, जो भी फॉलो करेगा, वो उसको जो है उसका जवाब एडवाइजर्स को देना होगा, क्योंकि अगर वो उनका मोबाइल ले लें, क्योंकि अगर वो शुरा ग्रुप को नहीं सुनेगा और उनके एडवाइस को फॉलो नहीं करेगा तो लीडर को जो है, अगर लीडर जो है इस्लामिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो शुरा जो है वो उनको हटा देती है। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन है ना। ये एक इन्होंने यूँ समझ ले कि मर्ज किया है ना खिलाफत को और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो बिल्कुल हमारे यहाँ इनके उसमें कैबिनेट सिस्टम है, हमारे यहाँ शुराई निज़ाम है। दोनों के अंदर उसूली तौर पर जो है कुरान हदीस के मुताबिक यही होता है फैसला कि भाई एक आदमी वो काबिल एतमाद नहीं है, सादिक अमीन नहीं है फॉर एग्जांपल, जो कानून भी बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसको वो कैबिनेट ही हटा सकता हो, उसके पास ये पावर हो। और शुराई निज़ाम में शूरा के पास वो पावर हो कि भाई एक आदमी वो ठीक है खलीफा कैलिफ तो बना हुआ है लेकिन वो बंदा सही नहीं है, हर एक को नजर आ रहा है, दिख रहा है, वो फैसले ठीक नहीं कर रहा है या कुछ भी उसमें गड़बड़ है, तो फिर वो शुराई निज़ाम उसको जो है ना हटा सकती हो, तब्दील कर सकती हो। तो ये एक इन्होंने सोल्यूशन उसका दिया जो बहुत अच्छा है और बेहतर चीज है। लीडर दो भी हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जिनकी डिफरेंट जॉब होगी, एक जो है वो इस्लामिक रूल्स का फॉलो देखेगा कि हो रहे हैं कंट्री में कि नहीं हो रहे, और दूसरा जो है कंट्री को रन करेगा। ऐसे ही होता है, मतलब दोनों एक दूसरे की जॉब को रिस्पेक्ट करें, वो उसके में ना बोले, वो उसके में ना बोले, तो ऐसे भी चल सकता है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल खलीफा है और आपके मददगार उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली भी, उन्होंने खुद हाथ पे बैत की, उनको और स्ट्रॉन्ग किया है, मजबूत किया है, ना कि उन्होंने अपनी ताकत को कमजोर किया। मिलजुल के वो उन्होंने इस निज़ाम को आगे चलाया और बढ़ाया। फिर आगे जाकर जो है वो फितने शुरू हुए और बहरहाल फिर ये मुसलमानों की ताकत जो है आहिस्ता आहिस्ता टूटती गई है, वो अलग मसाइल है। लेकिन अब ये एक चीज तो देखो पहले, हाँ देखो ये बात तो करीब कर सके। हाँ मैंने इनको ये पॉइंट दिया था कि करीब कर सके, है ना, तो ऐसा सलूशन नहीं, क्योंकि इसमें तो आपके पास बहुत शफाफ निज़ाम है। देखो ये जो एक पॉइंट इन्होंने कहा ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, सुन लो रुक जाओ, बस खत्म कर रहे हैं। है नहीं ना, तभी तो पता नहीं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इजमा और क्या हम क्यों बड़े से ऐलान करें कि हम शरीयत को फॉलो करते हैं, हम बीमारी भाई खामोश हो जाओ, वो बोलना चाह रहे कोई पॉइंट। हाँ शुक्र है।
ये बड़ा भाई कह रहे कैलिफ जो है ना, उसको तो कुरान हदीस से गाइडेंस मिल रही है। आपके पास कौन सी किताब है खुदा की? अल्लाह की कौन सी किताब है आपके पास? उनका सवाल ये, मैं नहीं कह रहा। देखिए उनकी बात तो वैलिड है ना कि उनके पास अल्लाह की प्रोटेस्ट नहीं करता, चीखते चिल्लाते भी नहीं है। हम लोग सबर करते हैं, चीखते भी नहीं है। भाई देखो ये तो इनका वैलिड पॉइंट है। आप सुनो भाई जवाब। जो डेमोक्रेसी यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में वो एक बहुत ही डिफरेंट डेमोक्रेसी है। जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बाहर सुनो पूरी बात सुनो पहले। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है उसमें ये सिस्टम साफ गवर्नमेंट है, वो सिर्फ अल्लाह का बिलोंग करती है, वो लोगों को बिलोंग नहीं करती। तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी चल रही है वो एक बात ये है कि देखो ये तो सिस्टमेटिकली हमारी डिबेट हो गई ना, और जो मुसलमान के पास एक असल निज़ाम है वो तो अल्लाह का निज़ाम ही है। हाँ ये है कि हम इस डिबेट में जो है ना, अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाले सामने आए जैसे इन्होंने माशाल्लाह अच्छी कोशिश करी कि भाई अपने निज़ाम को ना मकसद इक्वल करने की कोशिश की जाए शरिया निज़ाम खिलाफत के साथ, कि भाई जो खिलाफत और शरीयत की चीज़ें हैं, हालांकि अंग्रेज़ ने भी जो कानून बनाए ना तो उसमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखा है उसने। हाँ एक असल चीज़ उसमें से उसने निकाल दी, जो इस्लाम जिसको ताकतवर बनाता है ना, वो चीज़ होती है कि एक आदमी जो सारी ताकत रखता होता है, खलीफा होता है, वो खुद इतना पावरफुल होता है, मजबूत होता है कि उसकी बुनियाद पर जो है ना वो पूरी दुनिया को फतह कर लेता है। इतनी उसकी ताकत होती है, अल्लाह के साथ मदद होती है, वो होता भी इतना काबिल है, सबसे बड़ा इल्म वाला होता है, सारे फ़िरक़ों को समझने वाला होता है, उन हर बंदा उसको अपना बड़ा बनाने के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। ये जो एक पॉइंट है वो थोड़ा सा गलत है, मुझे बताना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है कि इस ज़माने में अब खिलाफत नहीं लौट के आ सकती, ये बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसकी दलील दे सकता हूँ कि आप देखें जब इंसान सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो गोया वही एक कैलिफ थे, अल्लाह के नबी खलीफा वही सब कुछ थे। और जब दुनिया ख़त्म होगी, जब दज्जाल आ जाएगा और सूरज पलट के वापस मगरिब से जाने लग जाएगा दोबारा मशरिक़ की तरफ गुरूब होने के लिए, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और जो हज़रत मेहदी हैं वो ज़हूर हो जाएगा उनका, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा जो श्रीलंका में एक जगह है वहाँ। तो जब मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो ये उम्मत के खलीफा होंगे, तो कैलिफिटी तो वापस लौट कर आएगी, रिटर्न। जैसे बंदा बचपन में होता है उसको कोई समझ नहीं होती, बच्चों वाली हरकतें, बूढ़ा हो जाता है फिर बच्चा बन जाता है, उलट जाता है, पूरा ज़माना अलग है, उसका ताकतवर जवानी भी गुजरी होती है लेकिन बुढ़ापे में वो फिर बच्चे की तरफ लौटता है। तो अल्लाह ने इस खिलाफत को दोबारा क़यामत के करीब लेकर आना है, वो तो निज़ाम आएगा मुसलमानों के पास, दोबारा आएगा। हैरत की बात यह है कि जिसका मैं आपको आंसर अभी दे देता हूँ, आपके जहन में भी होगी कि भाई इतनी न्यूक्लियर पावर्स हैं, कितनी कंट्रीज़, कैसे कैसे उनके पास मिसाइल है और क्या क्या ताकतें मौजूद हैं, लेकिन ये सारी ताकतें जब दज्जाल आ जाएगा ना और मेहदी अलैहिस्सलाम ये आ जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा, तब ये पटाखे होंगे उनके पास। तो भाई वो ताकत अल्लाह ने दज्जाल को दी है कि वो सेकंडों में दुनिया का चक्कर लगाएगा, चंद सेकंड के अंदर।
ऐसी कोई ताकत अभी है दुनिया में? ये मिसाइल तो उसके लिए कुछ नहीं होंगे, ये ऐसे वो अपनी उंगलियों से उसको ख़त्म कर देगा, अंगूठे इसके अंदर ही फाड़ देगा, वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये जितनी टेक्नोलॉजी आप उस वक्त तक भी बना चुके होंगे ना, उसके अंदर अल्लाह ने ऐसी ताकतें रखी हैं, वो इन सब चीज़ों को खा जाएगा, वो याजुज माजुज खा जाएंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता, वो आपके पेट की ताकतें खा के निकल जाएंगे, सेकंड लगेंगे उनको, वो कोई चीज़ ही नहीं छोड़ते। वो ऐसी अल्लाह ने ताकतें बनाई हैं जो हमें बचाया हुआ उनसे अल्लाह ने। तो बहरहाल उस वक्त खिलाफत का निज़ाम फ़ौरन सामने आ जाएगा काले झंडों की शक्ल में, और मेहदी अलैहिस्सलाम उस लश्कर के जो अमीर होंगे वो खलीफा होंगे, जो भी ईमान वाले मुसलमान होंगे वो खुद ही उस सिस्टम के साथ उनके साथ जुड़ जाएंगे। और वो क्वांटिटी कितनी होगी इसका तायन कोई ख़ास मखसूस नहीं है। हदीसों में मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ बताई गई हैं, 10,000, 10 लाख, करोड़ों की तादाद में भी है, ठीक है ना। तो बकिया लोग जो होंगे वो चले जाएंगे दज्जाल की तरफ, और वो कुफर की तरफ, सिस्टम की तरफ निकल जाएंगे। हाँ, क्योंकि एंड तो इस्लाम पर ही होनी है, खिलाफत पर ही होनी है। तो इस निज़ाम से तो हम कभी भी इनकार कर ही नहीं सकते। मुसलमान असल निज़ाम खिलाफत के साथ ही चलता है, लेकिन अगर कोई सही खलीफा इसको मिल जाए तो वाले न्यारे दुनिया में भी आखिरत में भी। बहरहाल हमारी डिबेट का यही एंड था, हम कोई एंटी खिलाफत शरीयत नहीं है। ये कोशिश इन्होंने करी और अच्छी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नोट कर लिए सारे पॉइंट जिन जिन स्टूडेंट्स ने। जो स्टूडेंट नहीं बोल रहे थे उन्होंने गलत किया, पॉइंट्स तो बनाने चाहिए थे, तेज़ी से बोलने थे आप लोगों ने, ताकि आपको उसके नंबर मिल जाए, आसानी हो जाए। बहरहाल चले, हमने नोट तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह जितना कर सके। हमारे ज़्यादा है, हाँ ना, इसका मतलब है हम नोट भी कर लिया मैंने, लेंस पे भी टिक कर लिया ना। आपने से मेरा वाला पॉइंट तो ऐड ही नहीं किया। मैं ले रहा हूँ, अटेंडेंस ले रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे, रुक जाओ। सर आप तो 10 नहीं ऐड किया, डेमो कंफर्टेबिलिटी। वालेकुम सलाम, ये आने का टाइम है कोई क्लास में? गर्मी हो रही है, इधर इतना रश हो रहा है। हो जा क्या बात करिए, अटेंडेंस नहीं है वहाँ, मैं यहाँ ले रहा हूँ। अच्छा, जारा राइशा अब्दुल मुइस, अब्दुल्ला हुसैन, आयशा अब्दुल करीम, अलीशा शहजाद, अलीशबा फैसल, आमना 505, अनुषा अमीर अली, अरीबा फातिमा। जो भाई चले गए स्टूडेंट उनके भी लगवा देना, जो चली गई हैं। अरीबा हो गई, अरीबा नौमान, अरीशा सुहेल, अशना असलम, आयशा आमिर खान। आयशा आमिर खान का है? आयशा नहीं है, आयशा आमिर खान। सर आयशा करीम। आयशा करीम तो आ गया ना, देखो कहाँ है? नहीं, आयशा अब्दुल करीम हो? कहाँ आई नहीं है वो? कहाँ आई नहीं, अल्लाह के बंदे नहीं आई तो बस उसकी एब्सेंट है। आयशा असद, आयशा आमिर खान, आयशा नदीम, आयशा उवैस, बेनज़ीर, बिस्मा उस्मानी,